गुड आफ्टरनून बच्चों, शुरू करें आज की क्लास। अभी तक हमने 4 चैप्टर तो पढ़े हैं न्यूमेरिकल और 2 चैप्टर पढ़े हैं हमने थियरी वाले, ठीक है ना। और आज हमारा ये थियरी वाला 3rd चैप्टर है और चैप्टर का नाम है बच्चों कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा। और क्योंकि इसके अभी तक हमारे पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई इसके नोट्स बच्चों मैं आपको यहीं पे बोल के लिखवाऊंगा और देन समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आप आपके नोट्स यहीं पे मेंटेन करेंगे। बाकी सबके हमारे पास नोट्स अवेलेबल थे, वो पूरे कंप्लीट थे, तो दैट्स वाई मैंने वैसे कराया। इस बार ये भी आपको बोल के कराऊंगा। अगले जितने भी चैप्टर्स हमारे 4-5 जो भी चैप्टर्स है थियरी के स्टैट्स में, तो वो हम ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए जी, हेडिंग डाल लो इंट्रोडक्शन, लिखो उसके अंदर थोड़ा स्पीड मेंटेन रखना बच्चों। स्टैटिस्टिक्स हैज गेन्ड सिग्निफिकेंट प्लेस। स्टैटिस्टिक्स हैज गेन्ड significant place in the modern complex business world. In the modern complex business world, full stop. Data is the base. Data is the base on which the statistical investigation is made. On which the statistical investigation is made. Full stop. The success and failure of investigation. The success and failure of investigation mainly depends upon the quality comma adequacy and accuracy of data. Quality comma adequacy and accuracy of data. नेक्स्ट हेडिंग लिखो बच्चों, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी लिखो, इसके अंदर लिखो एन इन्वेस्टिगेशन बाय एनी एजेंसी wherein relevant quantitative information is collected. Wherein relevant quantitative information is collected. Relevant quantitative information is collected is called as statistical inquiry. ENQUIRY, E वाला इंक्वायरी लिखना, ना कि I वाला इंक्वायरी, is called as statistical inquiry. अब लिखो, एक नोट डाल लो, नोट, और नोट के अंदर लिखना बच्चों एक हेडिंग लिखो, नोट नंबर 1 हेडिंग डालना इन्वेस्टिगेटर। लिखो इसके अंदर द पर्सन हु कंडक्ट्स द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। द पर्सन हु कंडक्ट्स द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। The person who conducts the statistical inquiry is known as investigator. Full stop. नोट नंबर 2 लिखो enumerator. ENUMERATOR, enumerator लिखो। The investigator needs
the help of certain persons. The investigator needs the help of certain persons to collect the information, to collect the information, comma, known as enumerator, KNOWN, known as enumerators, full stop. नोट नंबर 3 लिखो, respondents, respondents, the persons, comma, from whom the statistical information is collected, the statistical information is collected, comma, are known as respondents. Statistical information is collected, comma, are known as respondents, full stop. नोट नंबर 4 लिखो, सर्वे, लिखो, सर्वे इज अ मेथड, सर्वे इज अ मेथड of gathering information, of gathering information from individuals, gathering information from individuals, full stop. The purpose of the survey, the purpose of survey is to collect data, is to collect data by asking questions, by asking questions about a particular product, about a particular product or candidate, or candidate from a large group of people, from a large group of people, from a large group of people, फुल स्टॉप. नोट तो खत्म हो गई बच्चों, ठीक है ना. अब हेडिंग डालो, फ्रेश हेडिंग, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा. लिखो, इट इज द फर्स्ट स्टेप, इट इज द फर्स्ट स्टेप in any statistical investigation, in any statistical investigation, in any statistical investigation. ठीक है. अब एक काम करो, दो कॉलम बनाओ, ठीक है ना. एक टेबल बनानी है जिसमें दो कॉलम बनेंगे. पहले कॉलम में लिखना ईयर और दूसरे में लिखना प्रोडक्शन ऑफ व्हीट. ईयर, पहले में लिखना ईयर, दूसरे में लिखना प्रोडक्शन ऑफ व्हीट. और प्रोडक्शन ऑफ व्हीट के ब्रैकेट में लिखना इन मिलियन टन्स, इन मिलियन टन्स. लिखो, पहली रो में लिखो ईयर में 2015, ऐसे करते करते 16, 17, 18, 19, 20, 21. ठीक है. इधर लिखो 108, 132, अगेन 108, 176, 199, 195, 210. ठीक है. आगे बच्चों फिर एक नोट डालो और उसमें लिखो, हेडिंग डालो उसमें एक वेरिएबल, वेरिएबल. लिखो, a variable refers to quantity, a variable refers to quantity
whose value varies, WHOSE, whose value varies, VARIES, varies from one investigation to another, from one investigation to another, from one investigation to another, full stop. अब फ्रेश हेडिंग डालो बच्चों, सोर्सेज ऑफ डेटा, sources of data, sources of data. लिखो, there are two main sources of data, there are two main sources of data. First one is internal sources and the second one is external sources, and the second one is external sources. ऐसी राइटिंग लिख लेना जो खुद भी समझ में आ जाए दोबारा। हाँ, अब हेडिंग डाल लेना इंटरनल सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज। लिखो, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, in an organization, comma, when the data is collected, when the data is collected from its reports, from its reports and records, comma, it is known as internal sources of data, comma, it is known as internal sources of data, full stop. For example, next bullet से लिखना, for example, a company publishes, PUBLISHES, a company publishes its annual report, its annual report on profit and loss, on profit and loss, comma, total sales, comma, loans, comma, etc. Full stop. नेक्स्ट बुलेट से लिखो, डेटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड, डेटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड थ्रू इंटरनल सोर्सेज, थ्रू इंटरनल सोर्सेज is called internal data, is called internal data, full stop. नेक्स्ट हेडिंग लिखो बच्चों, एक्सटर्नल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज लिखो इसके अंदर, एक्सटर्नल सोर्सेज रेफर्स टू द डेटा कलेक्टेड, एक्सटर्नल सोर्सेज refer to the data collected from outside the organization, from outside the organization, full stop. For example, if a tour and travels company, if a tour and travels company obtains information on UP tourism from Uttar Pradesh Transport Corporation, from Uttar Pradesh Transport Corporation, comma, it would be known as external sources of data, it would be known as
external sources of data, full stop. नेक्स्ट बुलेट से लिखो डेटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड, डेटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेज, थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेज is called external data, is called external data. नेक्स्ट बुलेट से लिखो एक्सटर्नल डेटा कैन बी कलेक्टेड, external data can be collected from primary as well as secondary sources, from primary as well as secondary sources, full stop. नेक्स्ट हेडिंग डाल के छोड़ दो प्राइमरी डेटा। चलो देखो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर में हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? इकोनॉमिक्स के बारे में। और दूसरे चैप्टर में हमने मेनली किसके बारे में पढ़ा? स्टैट्स के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? और जब हम लोग स्टैट्स की सिंगुलर सेंस पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? सिंगुलर सेंस। तो वो ये कहती है कि जब हम नंबर्स में कुछ तो स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस लगाते हैं, वो क्या होती है? वो स्टैट्स होती है। वो क्या होती है? स्टैट्स होती है। जब हम स्टैट्स की टूल्स एंड टेक्निक्स लगाते हैं, ठीक है ना, मेथड्स लगाते हैं नंबर्स पे, तो वो क्या होती है? वो स्टैट्स है। लेकिन वो टूल्स एंड टेक्निक्स लगाने के लिए नंबर पे पहले नंबर का होना जरूरी है या नहीं है? उसे नंबर को कलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? बिकॉज एक सिंगल नंबर भी क्या नहीं होता? स्टैट्स नहीं होती, एग्रीगेट होता है। क्या होता है? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, और वो भी क्वांटिटेटिवली क्या हो? एक्सप्रेस्ड हो। तो बात आई है डेटा को कलेक्ट करने की कि जी अगर हमें क्या करना है, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस लगाने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कलेक्ट द डेटा। तो वो ही चैप्टर का क्या है? नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। कि हमें क्या करना है बच्चों? डेटा कलेक्ट करना है, अगर हम आगे उसमें स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस लगाना चाहते हैं। तो इंट्रोडक्शन में कह रहा है बच्चों, स्टैटिस्टिक्स हैज गेन्ड सिग्निफिकेंट इंपोर्टेंस इन द मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड, ये कॉम्प्लेक्स बिजनेस वर्ल्ड। आज का जो दौर है इसमें स्टैट्स की काफी ज्यादा क्या हो चुकी है? इंपोर्टेंस हमारी लाइफ में। और इनफैक्ट हम तो लास्ट वाले चैप्टर में देख के भी आए हैं कि बिजनेस वालों के लिए स्टैट्स कितनी जरूरी होती है। बिजनेस यूनिट एस्टैब्लिश करनी है, स्ट्रैटेजी बनानी है, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, प्रोजेक्ट वायबल होगा या नहीं होगा, कस्टमर को पसंद आएगा, बहुत तमाम चीजें थी जो हम देख के आए हैं। से यस और नो? तो कह रहे कि स्टैट्स की काफी क्या है? एक अहम जगह है आज के किसमें? बिजनेस वर्ल्ड में। कह रहे डेटा इज द बेस, डेटा ही तो वो चीज है, डेटा ही तो वो बेस है, डेटा ही तो वो क्या है? आपका फाउंडेशन है, जिसके बेसिस पे आप क्या करेंगे? कोई भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। भाई आगे की आपको क्या करनी है? कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, छानबीन करनी है, वो किसके बेसिस पे करेंगे? मान लिया अब मैं किसी को कैसे कह दूं कि ये चोर है? मेरे पास डेटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे इतनी बार आया है और इतनी बार में से ये यहाँ से कभी पेन उठा के लेके गया है, कभी उल्टा चेयर उठा के लेके गया, कभी कभी तो पंखा भी उठाने की कोशिश की है इसने। कैसे कह दूं मैं उसे कि ये चोर है? मेरे पास क्या होना चाहिए? सफिशिएंट डेटा होना चाहिए कि भाई ये इतनी बार यहाँ पे आया है, देखो उसका मेरे पास प्रूफ होना चाहिए कि इतनी बार आया है और ये कुछ ना कुछ उठा के लेके गया है। तो हम कुछ भी इन्वेस्टिगेशन तभी कर सकते हैं आगे जब मेरे पास क्या होगा? डेटा होगा। ठीक है ना? द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ इन्वेस्टिगेशन मेनली डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी, एडिक्वेसी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा। कोई भी इन्वेस्टिगेशन सक्सेसफुली कंडक्ट होगी या वो फेल हो जाएगी, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? कि जो तुमने डेटा कलेक्ट करा है उसकी क्वालिटी कैसी है, कि वो क्वालिटी वाला डेटा है भी या नहीं भी है। दूसरा,
वो सफिशिएंट है या नहीं है, मतलब जितना चाहिए था उतना डेटा है या नहीं है। और पहले वाला क्या बोल रहा है, क्वालिटी क्या बोल रहा है कि जैसा चाहिए था डेटा, जो क्वालिटी वाला चाहिए था, जिसमें क्या हो, सच्चाई हो, वो डेटा, ठीक है ना। एंड एक्यूरेसी, और वो डेटा बिल्कुल क्या हो, करेक्ट हो। डेटा जितना चाहिए उतना हो, वो तो है एडिक्वेसी, ठीक है ना। और जो तुम्हें मिला है वो क्या हो, एक्यूरेट हो, वो क्या हो, एक्यूरेट हो, सही हो। और उसमें क्या हो बच्चों, वो क्वालिटी वाला डेटा हो, क्या हो, क्वालिटी वाला डेटा हो। ऐसे नहीं हो कि वो कुछ भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो डेटा की तीन खास बात होनी चाहिए कि वो एक तो एडिक्वेट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, और आपका क्वालिटी वाला होना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं, क्योंकि हमने बात की है कि कोई भी जो इंक्वायरी होती है, कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन होती है, वो सक्सेस तभी होगी जब हमारे पास सफिशिएंट और क्वालिटी वाला एक्यूरेट क्या होगा, डेटा होगा। तो सवाल ये आता है कि जी ये भी बता दो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या होती है, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या होती है, ठीक है ना। हालांकि इन्वेस्टिगेशन अलग होती है और इंक्वायरी अलग होती है। अच्छा कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। देखो तीन चीजें होती है, एक होता है आई वाला इंक्वायरी, एक होता है ई वाला इंक्वायरी, और एक होती है इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरियस टर्म्स। हाँ जी, आई और ई वाला तो पता ही है आपको। ई वाला इंक्वायरी बोले तो जहाँ पे पूछताछ करनी होती है, कोई शक होता है आपको या विदाउट शक, विदाउट शक कुछ पूछना है, कोई जानकारी लेनी है, जैसे रेलवे स्टेशन पे चले गए, बस स्टैंड पे चले गए, साहब कितने बजे आएगी बस, है ना, कहाँ पे खड़ी है बस, कितने बजे चलेगी, तो ये वगैरह, ये हो गया ई वाला इंक्वायरी। आई वाला इंक्वायरी जब तुम्हें क्या हो, शक हो, क्या हो, शक हो, तो तब क्या करते हो, आई वाला इंक्वायरी। हाँ बोलो ना, तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे ऊपर शक है ना, तो जब तुम इधर उधर जाते हो तो तुम्हारा फोन खोल के देखती है, लेट्स सपोज, ठीक है ना, कि तुम सुबह से लेके शाम तक फोन में लगे रहते हो, यार फिर यार ये करता क्या है, तुम्हारे कॉल लॉग्स क्या कर रही है, चेक कर रही है। मुझे नहीं पता, देखो सबका अपना ही पर्सनल हो सकता है, कि मैं उस चीज पे नहीं जा रहा हूँ कि वो ऐसे चेक करना सही है या गलत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी का इतना तो अधिकार होता है कि तुम्हारा फोन चेक कर सके, आखिर मम्मी तो मम्मी है। हाँ जी, बात समझ में आ रही है आपको। तो मम्मी जब तुम्हारे से पूछती है कि तू पता नहीं यार क्या करता रहता है, तो वो है ई वाला इंक्वायरी, क्या है, ई वाला इंक्वायरी। लेकिन फिर जो तुमने बताया नहीं, मम्मी का ये जो थोड़ा जो पूछने की जो आदत थी तुम्हारे से, वो किस में बदल चुकी, शक में बदल चुकी, किस में बदल चुकी, शक में बदल चुकी। तुम देखो अब थोड़ा जो है ना लेवल है, वो लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। अब मम्मी ने तुम्हारे से ई वाला क्या नहीं किया, ई वाला इंक्वायरी नहीं किया, आई वाला इंक्वायरी खुद किया, तुम्हारा कॉल लॉग चेक करके, ठीक है ना, बाकी और चीजें चेक करके, तुम्हारी गैलरी वगैरह चेक करके, सही है सुन लो। हाँ जी। और लेट सपोज, वैसे आपने किया नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन फिर भी एक बार के लिए एग्जांपल को कंप्लीट करने के लिए बोल देता हूं। लेट सपोज तुमने कुछ कर दिया, कुछ उल्टा सीधा कर दिया, ठीक है ना। और अब तो क्या है, अब मतलब अब तो उन्हें पता, उन्हें कंफर्म हो चुका है, अब तो बस सामने क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए, क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए, ठीक है ना। अब बात इस हद तक बढ़ चुकी है ना। तो उस केस में क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन, है ना। जहां पे अच्छा इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन में तरीके कुछ और भी यूज किए जा सकते हैं, फेयर तरीके भी हो सकते हैं और अनफेयर तरीके भी हो सकते हैं। आमतौर पर आम जिंदगी में ऐसा तुम्हारे साथ ऐसी नौबत नहीं आएगी, या घर पे नहीं आती अक्सर, जनरली नौबत नौबत किस चीज की, इन्वेस्टिगेशन की। अक्सर इन्वेस्टिगेशन कौन करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, खासकर पुलिस करती है, ठीक है ना। पुलिस डिपार्टमेंट क्या है, इन्वेस्टिगेशन। अरे कोई देखा हो, कोई कोई तो टेररिस्ट को पकड़ा उन्होंने, है ना, और उसको कभी उरी में देखना आप, ठीक है ना, तो उसको क्या करके शॉक वगैरह लगवा करके, और उसके उसके ईयर्स को किससे, किसी तो इंस्ट्रूमेंट से पकड़ के दबा करके, बाकी सोचो फट्टे बजा करके, ठीक है ना। तो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। समझ में आ रही है आपको बात। हाँ जी,
अच्छा तीनों का लेवल फर्क समझ में आ रहा है। खैर, हम पढ़ रहे क्या है, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। क्या पढ़ रहे हैं, देखो क्या लिखा है, एन इन्वेस्टिगेशन। कह रहे जब क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बच्चों देखो यहाँ पे बहुत, मैं कह रहा हूं कि बहुत नॉर्मल से लेवल पे क्या लिखा है, टेक्स्ट लिखा है। जो एक्चुअल में मैंने बताया आपको तीनों के अंदर वो क्या होता है, डिफरेंस होता है। लेकिन इन्होंने देखो एनक्वायरी को भी क्या बोला, एनक्वायरी को भी इन्होंने क्या बोला, इन्वेस्टिगेशन बोला। क्या बोला, इन्वेस्टिगेशन। मैं ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है, लेकिन मैं इससे बहुत ज्यादा क्या नहीं रखता हूँ, मतलब ऐसे एग्री नहीं करता हूँ इस स्टेटमेंट से। वो बोल रहे हैं कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी एक इन्वेस्टिगेशन होती है, जरूरी नहीं है कि स्टैटिस्टिकल जो इंक्वायरी है वो एक इन्वेस्टिगेशन ही हो। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ी एक चीज होती है, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि वहां पे क्या होता है, शक होता है। क्या होता है, शक होता है। लेकिन जब हम ई वाला इंक्वायरी करते हैं तो वहां पे कोई शक नहीं होता। लेकिन फिर भी ये, अब मुझे नहीं पता कि ये ऐसा मान के कि छोटे बच्चे हैं, कोई बात नहीं, उन्हें ऐसे बताओ, ज्यादा इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको बताया वो प्रॉपर है, ठीक है ना। तो फिर भी देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेना कि इसका मतलब जो यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया है इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन वर्ड बहुत ज्यादा प्रॉपर यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो ये कह रहे कि एन इन्वेस्टिगेशन ऑन अ टॉपिक या एन इन्वेस्टिगेशन बाय एनी एजेंसी, एक वो इन्वेस्टिगेशन जो कोई एजेंसी करती है, कोई भी एजेंसी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। क्या करने के लिए, बोलो क्या करने के लिए, वेयर इन रेलिवेंट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। जो वो ऑर्गेनाइजेशन होता है, एजेंसी होती है, वो क्या करती है, कुछ क्वांटिटेटिव क्या करती है, इंफॉर्मेशन क्या करती है, कलेक्ट करती है। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या करती है, कलेक्ट करती है, उसे बोलते हैं क्या, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। बिकॉज स्टैट्स में जगह ही किसकी है, क्वांटिटेटिव फैक्ट्स की। बात समझ में आ रही है। अच्छा एक सवाल और पूछ लूं आपसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। डेटा क्या है, एक्यूरेट है। हाँ जी, वो कह रहा है कि डेटा एक्यूरेट भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन, हाँ, उसको क्या बोलते हैं, उसको डेटा बोलते हैं। नहीं, थोड़ा होच पोच हो गई। चलो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ बच्चों। एवरीथिंग, ये पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर बाद में बताता हूँ, समझाता हूँ। एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट, everything which is present, whether it is useful for you or not. Any fact which is available, whether it is useful for you or not, is called as data, is called as data. अब तुम इधर से जाते हो बच्चे लोगों, ठीक है ना, लोग अपनी बात कर रहे हैं, तुम्हारे कानों में कुछ सुनाई दे रहा है ना, क्या तुम उस पे ध्यान देते हो, वो भी तो क्या है, डेटा है ना। वो मान लिया वो अपने बात कर रहे हैं कि इतने लोग बीमार हो रहे हैं, इतनी ये चीज हो रही है, वो चीज हो रही है, तुम सामने से निकल गए, तुम्हारे काम की नहीं है वो चीज, ठीक है ना। तो ये क्या था, डेटा था। क्या था, डेटा था। वो भी तो एक फैक्ट है, तो वो फैक्ट लेकिन तुम्हारे काम का नहीं है। लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूं, अभी जो मैं बोल रहा हूं ये तुम्हारे काम का है। ऐसे में तो क्या होता है ना, एक टीचर बहुत सारी चीजें बोलता है, लेकिन बच्चे उसमें से अपने मतलब की चीजें निकालते हैं। अब मैं इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन बीच में कोई तो कॉन्सेप्ट, कोई तो फनी सा कॉन्सेप्ट आ जाए, उसमें तुम सारे अलर्ट हो जाते, अरे अभी तक तो ये डेटा चल रहा था, अब ये क्या है, इंफॉर्मेशन है, ये हमारे काम की। जो डेटा हमारे काम का है वो होती है इंफॉर्मेशन। क्या होती है, इंफॉर्मेशन। Every fact which is available, whether it is useful for you or not, is called as data. Whereas refined data, refined data which is useful to you is called as information. जो चीज तुम्हारे काम की है, जो फैक्ट तुम्हारे काम का है, वो क्या है, इंफॉर्मेशन है। मुझे बताना ज्यादा स्कोप किसका होगा, कौन वाइड टर्म है, कौन किसका बच्चा है, डेटा, इंफॉर्मेशन डेटा का बच्चा है, वेरी गुड। ज्यादा स्कोप किसका है, डेटा का। अरे
डेटा तो इतना मैं तुम्हें देखो, जैसे मैंने अभी आपको क्या किया, आपके साथ भी क्या किया मैंने, वो बुक लॉन्चिंग की मैं बात कर रहा था, तो मैंने इसकी आपके साथ बात की, वो 12th क्लास की थी। किसकी थी? 12th क्लास की। तुमने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। हाँ ठीक है, बिकॉज अपन लोग तो किसमें है, 11th क्लास में, तो तुम्हारे लिए वो क्या है, डेटा है। लेकिन जब मैंने वो सुबह बच्चों से फीडबैक लिए, किससे, 12th वालों से, ठीक है ना, तो वो बहुत ज्यादा, उनके चेहरे पे बहुत स्माइल थी, कह रहे भैया बस हमें तो पता नहीं क्या मिल गया, हमारा तो काम आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, बिकॉज उनके लिए वो डेटा नहीं था, उनके लिए वो क्या है, इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उन्हें पता है वो उसके उनके काम की है। तो वो लगता है अरे अभी तो हमें तो क्या देने हैं, एग्जाम देने 11th के, हमारे कहाँ ही काम की है। सही है, सुनो, बात समझ में आती है? अच्छा देखो बच्चों, ये चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अब तुम्हें ऐसे लगेगा कि मैं क्या क्या बातें बता रहा हूँ, वो यहाँ पे तो है नहीं बच्चों, यही क्या है, फंडामेंटल्स है। ये चीजें सीखोगे तो शायद आगे भी और अभी भी ये चैप्टर को समझने में इजी होगा। बाकी इन चैप्टर के अंदर जो चीजें है वो फालतू की बकवास भरी हुई है, बहुत ज्यादा कचरा भरा हुआ है, इधर उधर की बातें की हुई है, ये बढ़ा चढ़ा करके। जो मेन चीजें है वो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, डिफरेंस बिटवीन आई वाला इंक्वायरी, सबसे शुरू से चालू करता हूं, डिफरेंस बिटवीन ई वाला इंक्वायरी, आई वाला इंक्वायरी, एंड आई फॉर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इज द लास्ट स्टेज। वो क्या होती है, लास्ट स्टेज होती है। अच्छा ठीक है, हाँ जी। फिर मैंने आपको बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हाँ जी, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो ये दो चीजें बताई मैंने आपको, हाँ, मतलब 3 तो टर्म वे बताई और 2 टर्म ये लगे हाथ। एक और कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पे इसको कोई मतलब नहीं है लेकिन उससे कनेक्टेड है। आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग? नमन भैया क्या पढ़ा रहे हो बेटा, इसी से ही कनेक्शन है उसका। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग? लिसनिंग बोलना होता है। ओ माय गॉड, स्पीकिंग कह रही है, मैं तो मर ही जाऊंगी। कह रहे इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है, मेरा कोई सगा नहीं है ना, लोगों ने मुझे ऐसे बेगाना कर दिया। लिसनिंग माने बोलना। वाह बेटा वाह, बहुत आगे जाओगे। हाँ जी, वेरी गुड, दैट्स द राइट आंसर। अभी देखो, अभी अपन लोग, आप इधर बैठे हो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तो आप हियर कर रहे हो कि लिसन? नमन भाई हम तो हियर कर रहे हैं। ए बेटा ऐसे नहीं करने का, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हो, लिसनिंग कर रहे हो ना, जबरदस्ती नमन भैया। अरे सुन रहे हो ना आप, ध्यान लगा करके सारे बच्चे, या भाई आते हो तुम, अपने आप को से डिक्लेयर करोगे हम इधर बैठे बस। लेकिन अभी देखो तुम नीचे बाहर कुछ कुछ आवाजें भी आ रही है ना, कुछ लोग कुछ अपनी बातें कर रहे हैं, वो भी हमें सुनाई दे रही है। वैसे तो नहीं है कि वो हमें सुनाई नहीं देगी। तो देखो देखो वो बच्चा बोल रहा है लेकिन तुम उसमें ध्यान तो लगा रहे हो। बाकी जो बच्चे भी यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी सुने ध्यान से, कान लगा करके। एक बच्चा कुछ तो बोल रहा है बाहर नीचे, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये हियरिंग है। क्या है, हियरिंग है। कि हियरिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। वो एक कैसी प्रोसेस होती है ना। तुम सारे दिन कान बंद करके नहीं रह सकते, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सुनती है लेकिन वो हमारे काम की नहीं है। से ऐसा नो, लेकिन जो हमारे काम की है उसे हम हियर नहीं करते, उसे हम लिसन करते हैं। जहां पे आप आपके माइंड को भी क्या करते हो, यूज करते हो और उसे एनालाइज करते हो कि ये हमारे ऊपर कैसे इंपैक्ट डालेगी या हमारे काम में कैसे आएगी। वो क्या होती है, वो क्या होती है, लिसनिंग। वो प्रोसेस को बोलते हैं लिसनिंग। लिसनिंग एक क्या होती है, वो डेलिब्रेट प्रोसेस होती है। कैसी होती है, डेलिब्रेट का मतलब हम करते हैं जानबूझ के। अब सारी प्रोसेस, सारी चीजों को आप जानबूझ के सुनते नहीं हो, ठीक है ना, कुछ ऑटोमेटिक चलती है, वो हियरिंग है। तो मुझे बताओ, आप लेट सपोज आपके सामने डेटा है, डेटा, तो डेटा को आप हियर करोगे या लिसन करोगे? हियर करोगे। और इंफॉर्मेशन को, सिंपल, क्योंकि डेटा आपके काम की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। उसमें से जो काम की है वो ही तो इंफॉर्मेशन, उसी को आप क्या करोगे, लिसन करोगे। खैर, फिलहाल आपको ये समझ में आया क्या बच्चों? क्या स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या होती है? स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी बोल रहे हैं कि ये एक इन्वेस्टिगेशन होती है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन में क्योंकि शक होता है और इंक्वायरी में जस्ट पूछताछ होती है कि जहां पे हम कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो एक एजेंसी करती है, क्या लेने के लिए, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है बच्चों,
अब हमने नोट लिखवाया है आपको, है ना, और नोट में सबसे पहला नोट क्या लिखा है, इन्वेस्टिगेटर। हु इज द इन्वेस्टिगेटर, जो बंदा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो कौन होता है, इन्वेस्टिगेटर। देखो कितना भारी है। द पर्सन हु कंडक्ट्स द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज नोन एज इन्वेस्टिगेटर। जो इंसान क्या कर रहा है, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कर रहा है, वो कौन है, इन्वेस्टिगेटर, है ना। अब ध्यान से सुनो, जब वो इन्वेस्टिगेटर जाता है तो उसे दो चार लोगों की और हेल्प पड़ती है, साथ में अपने वो ऐसे लेके जाता है, छोटू वोटू लेके जाता है। चल भाई तू फॉर्म, मान लिया एक बंदा है जो आपसे डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो वो फॉर्म लेके जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, फॉर्म। तो एक दो छोटू उसके साथ होंगे और भी साथ में उसके जो कलीग्स होंगे कि वो फॉर्म निकाल के देगा, है ना। वो बोलेगा कि चल मैं इससे पूछता हूँ, तू इसे फिल कर, क्या कर, फिल कर। मान लिया कोई क्या है वो ऑन द स्पॉट हमें क्या करना है, वो टैब पे क्या करना है, फिल करना है। मान लिया जो इन्वेस्टिगेटर है, लेट सपोज उसको चलाना नहीं आता टैब वगैरह, है ना, तो उसने एक बंदे को लेके गया साथ में, जो उधर ऐसे टाइपिंग करके, या ऐसे उसको टाइपिंग की स्पीड तेज नहीं होगी उसकी, तो एक बंदा वो सामने से वो ये क्वेश्चन पुट अप करेगा, कौन, इन्वेस्टिगेटर। सामने वाला जवाब देगा, जो जवाब देगा वो रिस्पोंडेंट होता है, कौन होता है, रिस्पोंडेंट। और ये फटाफट से क्या करेगा, लेट सपोज टाइपिंग करेगा और सबमिट करेगा। तो जो हेल्प करता है डेटा को कलेक्ट करने में, किसकी हेल्प करता है, इन्वेस्टिगेटर की, वो होता है एन्यूमरेटर। कौन होता है, एन्यूमरेटर। देखो ना इधर लिखा है, द इन्वेस्टिगेटर नीड्स द हेल्प ऑफ सर्टेन पर्सन। जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसे कुछ लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ती है टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। क्या करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, नोन एज एन्यूमरेटर, जिसे क्या बोलते हैं हम, एन्यूमरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट है रेस्पोंडेंट, जो जवाब दे रहा है क्वेश्चन पूछने पे, वो कौन है, रेस्पोंडेंट, नाम से डिफाइंड है। द पर्सन फ्रॉम whom द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, जिस इंसान से स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, आर नोन एज रेस्पोंडेंट। सर्वे क्या होता है, सर्वे, सर्वे बच्चों इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का एक क्या होते हैं, या ये एक क्या होता है, तरीका होता है। क्या होता है, तरीका। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का एक तरीका होता है क्या, सर्वे। वही लिखा है यहाँ पे, सर्वे इज अ मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स। ये एक तरीका होता है इंडिविजुअल से क्या करने का, हाँ, डेटा को कलेक्ट करने का। अच्छा, ये कह रहा है, फिर आगे क्या लिखा है, एक बार पढ़ के बताओगे आप। हाँ जी, आप पढ़ो चलो। द पर्पज ऑफ द सर्वे इज टू कलेक्ट डेटा। इसका पर्पज क्या होता है सर्वे का, डेटा को क्या करना, कलेक्ट करना, ठीक है ना। बाय आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट अ, लेट सपोज हम बिजनेस वाले हैं और हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ क्या करने हैं, क्वेश्चंस क्या करने हैं, पुट अप करने हैं, सामने वाले से पूछ, अरे जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अपनी बुक लॉन्च कर रहा हूँ, तो मैं आपको पूछ रहा हूँ ना कि आप बताओ कि इसमें और क्या होना चाहिए, तुम्हें अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, और इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं, तो वो आपके फीडबैक ले रहे हैं। तो वही चीज है, तो किसी प्रोडक्ट के बारे में हम क्या कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, है ना। और किसी कैंडिडेट के बारे में, मान लिया अभी इलेक्शन है आने वाले टाइम में बच्चों, है ना, तो वो जो ये होते हैं ना, कौन, मीडिया वाले होते हैं, वे रिपोर्टर होते हैं, वो जा जाके पूछते हैं कि आप किसको वोट दीजिएगा, क्यों दीजिएगा, क्या किया है उन्होंने, है ना, तो अब आप क्यों नहीं चेंज करना चाहते हो, ये वगैरह, वो ताकि वो ये पता लगा पाए कि किस कैंडिडेट की पॉपुलैरिटी ज्यादा है ना, फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, किससे, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल से, ठीक है। अब हेडिंग फिर डलाई हमने, फ्रेश टॉपिक है, कलेक्शन ऑफ डेटा। बेटा अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है या इंक्वायरी करनी है, क्या करनी है, इंक्वायरी करनी है, तो सबसे पहले तो क्या ही करना पड़ेगा, डेटा कलेक्ट ही करना पड़ेगा। तो इसलिए बोला ये फर्स्ट स्टेप है किसका, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का। अगर आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो तो सबसे फर्स्ट स्टेप है। और जैसे ये डेटा लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देखो, है ना, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में वीट का प्रोडक्शन कितने मिलियन टन का हुआ, तो उधर लिखा है, वो नंबर है, क्या है, तो ये हमने कलेक्ट किया है ना, क्या किया है, कलेक्ट किया है। अच्छा, अब इसमें बच्चों जो ये है, एक हेडिंग डली हुई है नीचे, वेरिएबल, नोट में डली हुई होगी हेडिंग, क्या, वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, जो चीज क्या होती है, वेरी होती है, विच इज एबल टू बी वेरी, जो चेंज हो सकती है, वो क्या है, वेरिएबल। तो तुम देखो यहाँ पे ईयर चेंज हो रहा है, तो ये अपने आप में क्या है, वेरिएबल है। और प्रोडक्शन अपने आप में क्या है, वेरिएबल है, बिकॉज वो नंबर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ईयर बाय ईयर, ठीक है ना। अ वेरिएबल रेफर्स टू द क्वांटिटी whose value varies from one investigation to another। एक ऐसा वेरिएबल, सॉरी, एक वेरिएबल वो वैल्यू होती है जो चेंज होती है इन्वेस्टिगेशन टू इन्वेस्टिगेशन। मतलब आज हमने इन्वेस्टिगेशन करी, हमने देखा भाई 2015 में कितना प्रोडक्शन हुआ, तो वो अपने आप में एक नंबर था। 2016 में हमने देखा तो वो अपने आप में कोई तो डिफरेंट नंबर आया, ठीक है ना। तो यही क्या है, वेरिएबल है, जो चीज चेंज होती है वो क्या है, वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, फिर क्या है, अभी हमें डेटा कलेक्ट करना है, क्या करना है,
डेटा कलेक्ट करना है, कलेक्शन ऑफ डेटा था ना, अब डेटा कलेक्ट करना है तो उसके सोर्सेज कहां से डेटा कलेक्ट करेंगे, तो बच्चों दो सोर्स होते हैं, एक इंटरनल सोर्स और एक एक्सटर्नल सोर्स। जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं बच्चों इंटरनल डेटा या इंटरनल सोर्स। और जब अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से करते हैं तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स। अब तुम बोलने लगो कि नमन भैया आप ये बताओ कि आपके यहाँ पे पास में कितने स्टूडेंट्स पढ़ते थे, और मैंने अपनी फाइल्स वगैरह निकाली इधर से और उसमें से आपको वो डेटा बताया, यस और नो, तो ये क्या है, इंटरनल की एक्सटर्नल, इंटरनल, क्योंकि ये जो डेटा हमने निकाला है, यूज किया है, ये कहां से निकाला है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से। हाँ बोलो। लेकिन बच्चे लोगों, अगर मैं ये पता लगवाऊं आपसे कि बुढ़ाना में कॉमर्स के कितने बच्चे, कितने स्कूल्स है, कितने बच्चे हैं, ह्यूमैनिटीज के कितने बच्चे हैं, वो सारी चीजें, तो ये हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से क्या कर रहे हैं, ये डेटा ले रहे हैं, या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से, बाहर से, तो ये क्या है, एक्सटर्नल सोर्स, क्या है, एक्सटर्नल सोर्स। बात समझ में आई आपको? चलो देखते हैं। There are two main sources of data. First one is internal and the second one is external. बात करें इंटरनल की, in an organization when the data is collected from its report, जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं अपनी ही जो हमने रिपोर्ट्स बनाई है उनसे, या कोई हमने रिकॉर्ड मेंटेन किए उनसे, इट इज नोन एज इंटरनल सोर्सेज ऑफ डेटा, उसे बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी पब्लिशेज इट्स एनुअल रिपोर्ट, एक जो कंपनी होती है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट क्या करती है, पब्लिश करती है कि उनकी एसेट्स की पोजीशन क्या है, बैलेंस शीट बनाती है, वो एसओपीएल बनाती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बाकी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है। तो उससे वो क्या कर रही है, वो जो उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की है प्रॉफिट एंड लॉस की, या टोटल सेल्स कितनी हुई पिछले साल में, पिछले क्वार्टर में, या उन्होंने कितने लोन लिए, जब वो वाला डेटा यूज करती है, तो बच्चों ये इंटरनल सोर्स कहलाता है। डेटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड थ्रू इंटरनल सोर्सेज इज कॉल्ड इंटरनल डेटा। ये मैं आपको बता चुका हूं, जो डेटा आपने इंटरनल सोर्सेज से क्या किया है, उठाया है, यूज किया है, कंपाइल किया है, अपने मतलब की चीजें निकाली है, सुनो ना, उसे बोलते क्या, इंटरनल डेटा। क्या बोलते हैं, इंटरनल डेटा। हालांकि मैं आपको फिर भी बता दूं बच्चों, यहाँ पे बहुत पता नहीं बहुत जनरल सा डिस्कशन दिया है, जहां यहाँ पे ना उसने किसकी भी बात नहीं की है, डेटा और इंफॉर्मेशन के डिफरेंस की भी क्या नहीं की है, बात नहीं की है। वो बात बात पे डेटा को ही क्या मानता है, इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को ही क्या मानता है, डेटा। लेकिन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट लिखा बच्चा यहाँ पर, ये क्या, एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स रेफर टू द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द, जब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आप डेटा कलेक्ट करते हो तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स। फॉर एग्जांपल, जैसे एक कोई टूर एंड ट्रैवल कंपनी है, अरे जैसे एमएमटी है, मेक माई ट्रिप, ठीक है ना, तो उन्हें क्या चाहिए, वो क्या करते हैं, वो आइटनरी बना के देते हैं लोगों को, पूरे हॉलिडे पैकेज क्या देते हैं, बना के देते हैं। अब उन्हें भी तो डेटा चाहिए कि हम कहाँ पे कौन कौन सी नई जगह है। जैसे अब लेट्स सपोज बच्चों, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल और फिट भी हो गया एग्जांपल, बिल्कुल रियल लाइफ से, कि जैसे अभी क्या है कि अयोध्या में उन्होंने क्या किया है, राम मंदिर बनाया है सरकार ने, है ना, तो उस केस में क्या है कि अब वहां पे लोग जाएंगे, दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो जितने भी जो बाकी ये है क्या नाम, जो ट्रैवल कंपनी है, टूर एंड ट्रैवल कंपनी है, इनको क्या बना के देने पड़ेंगे, पैकेज बनाने पड़ेंगे भाई, लोग वहां पे जाएंगे तो उन्हें सर्व करने के लिए। तो अब इन्हें डेटा चाहिए कि भाई वहां पे कितने मंदिर है, क्या है, या और आसपास क्या देखने लायक चीज है, या क्या हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, भारत के कल्चर को कैसे जान सकते हैं, कितने मंदिर है, कितने मस्जिद है ना, तो ये सारे, ये जो लोग ये देखने जा रहे हैं तो वो भी देखने जाए, तो वो सारी चीजें, तो उन्हें वो इन्फॉर्मेशन की जरूरत है कि नहीं है, अपने आप से तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं, ये कहां से मिलेगी, ये किससे मिलेगी। लेट्स सपोज जैसे ये है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, इससे उन्हें क्या लेनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है। ये जो यूपी टूरिज्म है, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है इसका, उत्तर प्रदेश सरकार का, तो उससे उन्हें कुछ क्या निकलवाना है, डेटा निकलवाना है, तो इनके लिए इंटरनल है कि एक्सटर्नल, एक्सटर्नल है। तो वही बोल रहा है, फॉर टूर एंड ट्रैवल कंपनी ऑब्टेन्स इंफॉर्मेशन ऑन यूपी टूरिज्म, उन्हें यूपी टूरिज्म के बारे में कोई तो क्या लेनी है, जानकारी लेनी है, कुछ नंबर चाहिए उन्हें, बाकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो ले सकते हैं उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से। इट वुड बी नोन एज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा। ये क्या होगा, एक्सटर्नल सोर्स होगा डेटा का। डेटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेज इज कॉल्ड एक्सटर्नल डेटा। जो डेटा तुमने एक्सटर्नल सोर्स से उठाया है, कंपाइल किया है, उसकी फाइलिंग की है, उसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल डेटा बोलेंगे। और एक्सटर्नल डेटा बच्चों कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सोर्सेज। जो एक्सटर्नल डेटा है वो प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। मतलब इसके दो बच्चे हैं एक्सटर्नल के, एक प्राइमरी बच्चा और एक सेकेंडरी बच्चा। अब सुनो ध्यान से, मतलब करा नहीं रहा हूं, हेडिंग डलवा के छोड़िए, लिखवाऊंगा कल, हल्का सा समझ लो।
अब जब आप बाहर से डेटा कलेक्ट करोगे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो किसी ने डेटा पहले कभी कलेक्ट किया हो और तुमने उसी का डेटा यूज कर लिया, तो ये पहली बार डेटा यूज हुआ है, दूसरी बार यूज हुआ है, दूसरी बार, तो ये सेकेंडरी डेटा। कौन सा डेटा? और लेकिन तुम्हें कहीं से डेटा मिल नहीं पाया, सरकार ने देने से मना कर दिया, हम नहीं दे रहे डेटा, ऐसे नहीं देते हम डेटा, मुंह उठा के चले आए। डेटा की कोई प्राइवेसी नाम की चीज होती है, हम नहीं देते डेटा ऐसा, ठीक है ना। तो फिर तुम जाके अपनी टीम खुद भेजोगे। तुम अगर एमएमटी वाले हो, मेक माई ट्रिप वाले हो, तो तुम अपनी टीम अयोध्या भेजोगे, वहां पे देखोगे कि भाई कहाँ कहाँ पे क्या टूरिस्ट स्पॉट है, कितने मंदिर है, कितने मस्जिद है, कहाँ कहाँ पे क्या है, आसपास की लोकेशन पे और लोग कहाँ पे जा सकते हैं, कैसे पैकेज बना सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें फर्स्ट टाइम क्या करनी पड़ेगी, खुद से कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो बताओ ये दूसरी बार इन्फॉर्मेशन आप यूज करोगे, पहली बार ही कलेक्ट करके यूज करोगे, तो ये प्राइमरी है। जब खुद से कलेक्ट करोगे अपने मतलब का डेटा या इंफॉर्मेशन, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी सोर्स। और जब ऑलरेडी किसी ने किया हुआ है, उसका ही यूज कर ले रहे हो आप डेटा, तो उसे बोल रहे हैं सेकेंडरी डेटा। ठीक है जी। और बच्चों ये हम कल पढ़ेंगे, कल कुछ और भी टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें। और जो प्राइमरी है ना, प्राइमरी के भी फिर बच्चे होते हैं, प्राइमरी डेटा के मेथड होते हैं कि कैसे कलेक्ट करने का है, कल वो पढ़ेंगे। और प्राइमरी सेकेंडरी में कुछ और डिफरेंसेस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे, ठीक है जी।